آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ 26 جنوری یوم جمہوریہ کے موقع پر رابطہ وزیر سنجے شرساٹ کے ہاتھوں پولیس کمشنریٹ کے دیوگری میدان پر لہرایا جائے گا قومی پرچم۔ پرچم کشائی تقریب کے لیے کی گئی تیاریوں کا ڈویژنل کمشنر دلیپ گاوڑے نے لیا جائزہ اور متعلقہ افسران کو دی ضروری ہدایات۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اسکیم کے 10 سال مکمل۔ ضلع پریشد دفتر میں CEO کی موجودگی میں حاضرین کو دلایا گیا عہد۔ لڑکیوں کی شرح پیدائش میں اضافے کے لیے ٹھوس قدم اٹھانے کا CEO نے دیا حاضرین کو مشورہ اور شروع کی گئی دستخطی مہم۔ سیکنڈری و ہائر سیکنڈری بورڈ امتحانات کے لیے بورڈ انتظامیہ نے لیا اہم فیصلہ۔ ایگزام سینٹرز پر طلباء کے ساتھ اب نہیں ہوں گے ان کے اسکولوں کے اساتذہ و دیگر اسٹاف ممبران۔ سینٹر چیف سپروائزر انویجیلیٹرز ہوں گے غیر متعلقہ شخصیات۔ اور تعلیمی اداروں میں سالانہ گیدرنگ اور تعلیمی نمائش کے انعقاد کا سلسلہ جاری۔ اقرا اردو پرائمری اسکول میں تعلیمی نمائش کا اہتمام، جبکہ میونسپل کارپوریشن کے مکندواڑی اسکول میں منعقد کی گئی سالانہ گیدرنگ۔ اسکولی طلباء نے لیا ہر دو تقریبات میں بڑھ چڑھ کر حصہ اور منوایا اپنی ذہانت کا لوہا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی یوم جمہوریہ کے موقع پر انتظامیہ کی جانب سے خصوصی پرچم کشائی کی رسم پولیس کمشنریٹ کے میدان پر ادا کی جائے گی، جس کی تیاریوں کا علاقائی کمشنر دلیپ گاوڑے نے جائزہ لیا اور متعلقہ افسران کو ضروری ہدایات دی۔ واضح ہے کہ سال رواں خصوصی پرچم کشائی کی رسم ضلع کے رابطہ وزیر سنجے شرساٹ کے ہاتھوں ادا کی جائے گی، لہٰذا اس تقریب کی تیاریوں کا جائزہ لینے ڈویژنل کمشنر دلیپ گاوڑے نے گزشتہ روز ایک اہم میٹنگ طلب کی، جس میں ضلع پریشد کے CEO وکاس مینا، ڈپٹی ڈویژنل کمشنر جنرل ایڈمنسٹریشن اروند لوکھنڈے، تحصیلدار گجانند ناندگاؤکر اور ریونیو پولیس محکمہ، میونسپل کارپوریشن، PWD، ضلع پریشد، شعبہ تعلیم اور ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر کے افسران و ملازمین شریک تھے۔ اس تقریب کے لیے اب تک کی گئی تیاریوں کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے تمام سرکاری افسران کو ہدایت دی کہ دیوگری میدان اور اس کے اطراف کے علاقوں کو تقریب سے قبل مکمل طور پر صاف کیا جائے، قومی پرچم کو سلامی دینے کے انتظامات مکمل کیے جائیں، پولیس اسکواڈ اور بینڈ اسکواڈ کے لیے ملازمین کا انتخاب کر کے انہیں سلامی کی مکمل تربیت دی جائے اور سبھی کام تقریب سے پہلے مکمل کر لیے جائیں۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے مختلف شعبوں میں نوجوانوں کو نوکری کے مواقع فراہم کروانے کی غرض سے ٹیک مہندرا اسمارٹ اکیڈمی فار ہیلتھ کیئر AMC اور سکندر علی وجد میموریل ٹرسٹ کے اشتراک سے مختلف کورسز کی ٹریننگ کا انتظام کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے مختلف شعبوں میں نوجوانوں کو ملازمت کے مواقع مل سکتے ہیں، مگر ان کے پاس ان شعبوں کے لیے درکار تعلیمی قابلیت اور اہلیت نہیں ہوتی، لہٰذا انہیں ان شعبہ جات میں نوکری مل سکے، اس غرض سے میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت کی کاوشوں سے ٹیک مہندرا اور وجد میموریل ٹرسٹ کے تعاون سے ٹاؤن ہال پر واقع ٹرسٹ کی عمارت میں جنرل ڈیوٹی اسسٹنٹ، ہاسپٹل فرنٹ آفس اینڈ بلڈنگ ایگزیکٹوز عہدوں کے لیے خصوصی تربیت کا انتظام کیا گیا ہے۔ دونوں ہی کورسز 6 ماہ کے ہیں۔ جنرل ڈیوٹی اسسٹنٹ کے لیے امیدوار کا میٹرک پاس ہونا ضروری ہے، جبکہ ہاسپٹل فرنٹ آفس اینڈ بلڈنگ ایگزیکٹوز کے لیے امیدوار کا کسی بھی فیکلٹی سے گریجویشن ہونا ضروری ہے، لہٰذا نوجوان لڑکے اور لڑکیوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے سکندر علی وجد میموریل ٹرسٹ کے دفتر پر راست پہنچ کر یا موبائل نمبر 8826366225 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل پہلے ہم دونوں ہاتھ کو رب کریں گے۔ فرسٹ اسٹیپ کون سی رب کریں گے؟ فرسٹ اسٹیپ پام ٹو پام رب کریں گے۔ سیکنڈلی ہم یہ کریں گے پام ٹو بیک آف ہینڈ ود ادر ہینڈز پام، ادر دونوں ہاتھ کے لیے کمپلسری فنگر انٹرلاک انٹرلیس، فنگر انٹرلیس، ٹھیک ہے، یہ دونوں کے اوپر پریشر آئے۔ یس، فورتھ ون یس، فنگر انٹرلاک، فورتھ، دونوں سائڈ پر۔ فورتھ والا جو ہے ففتھ جو ہے ہم جو ہے دونوں، اور ایک جگہ 6 1 6 1 جو ہے دونوں پام پہ
और लास्ट जो है हमारा रिस्ट जो है रिस्ट को जो है अच्छे से करेंगे। लोकसभा विधानसभा इंतखाबात 2024 में नुमाया खिदमत अंजाम देने पर डिविजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े, ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी और सब डिविजनल ऑफिसर लतीफ़ पठान को अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। ये इत्तला DIO दफ्तर से मौसूल हुई है। नाजरीन, हाल ही में पूरे मुल्क में लोकसभा और रियासत महाराष्ट्र में असम्बली इंतखाबात मुनक़िद किए गए थे। इन दोनों ही इंतखाबात में औरंगाबाद डिवीज़न में पोस्टल बैलेट पेपर की इजराई, वसूली और काउंटिंग के लिए बेहतर इंतजामात करने पर डिविजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े, जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी को इसी तरह सिल्लोड़ असेंबली हल्के में बेहतरीन तरीके से इलेक्शन की कार्रवाई मुकम्मल करवाने पर सिल्लोड़ के सब डिविजनल ऑफिसर लतीफ़ पठान का इंतखाब इस अवार्ड के लिए किया गया है, जिन्हें रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से इनामात और तौसीफनामों से नवाजा जाएगा, जिसका ऐलान चीफ इलेक्शन कमिश्नर दफ्तर से किया गया है। जालना दौरे पर आए वज़ीर आला अजीत पवार ने एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और नियोजन भवन का जायज़ा लिया और जारी तामीराती काम टिकाऊ और दर्जेदार किए जाने के अफसरान को हिदायत दी। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने जदीद तर्ज तकनीक के इस्तेमाल की भी हिदायत दी। आया रहे कि जालना में नई एडमिनिस्ट्रेटिव इमारत और मनसूबा बंदी भवन का तामीरी काम जारी है। नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने इस काम का मुआयना किया। उस वक्त उनके हमरा अराकीन असम्बली नारायण कूचे, विक्रम काले, साबिक MLA सतीश चौहान, जिला कलेक्टर श्री कृष्ण पांचाल, जिला पुलिस सुपरिंटेंडेंट अजय कुमार बंसल, RDC गणेश महाडिक, नायब जिला कलेक्टर नम्रता चाटे, सब डिविजनल ऑफिसर श्रीमंत हारकर, प्लानिंग ऑफिसर सूर्यवंशी व दीगर अहम अफसरान मौजूद थे। अजीत पवार ने जिला कलेक्टर से मज़कूरा दोनों इमारतों के काम से मुताल्लिक़ तफसीली जानकारी हासिल की और उन्हें ज़रूरी हिदायत दी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 साल मुकम्मल होने पर ज़िला परिषद की जानिब से दस्तखती मुहिम के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के हल्फ दिलवाने का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। ये प्रोग्राम जिला परिषद CEO विकास मीना की खुसूसी मौजूदगी में जिला परिषद के बहबूदी ख़वातीन और अतफ़ाल शोबे की जानिब से मुनक़िद किया गया। यहाँ रहे कि ख़वातीन इन दिनों हर एक शोबे ज़िंदगी में शमूलियत के साथ नुमायाँ किरदार और कारकर्दगी अंजाम दे रही हैं। चुनांचे ज़रूरत इस बात की है कि अब बेटी और बेटे में कोई तफरीक न की जाए और न ही जिन्स के भेदभाव को कोई जगह दी जाए और हर मैदान में लड़के लड़कियों को मसावी दर्जा दिया जाए। दौरान हमल जिन्स की जांच न की जाए, इस मकसद से इंतज़ामी सतह पर भी तमाम अफसरान और मुलाजमीन को आगे आना चाहिए। इस तरह की हिदायत और अपील CEO विकास मीना ने इस मौके पर की है। इस प्रोग्राम में डिप्टी CEO उमूमी इंतज़ामिया राघवेंद्र घोरपड़े, ख़वातीन और अतफ़ाल शोबे की डिप्टी CEO सुवर्णा जाधव, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तामीरात सुखदेव काकड़े, एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी जयश्री चौहान, मीना तबकीरे और दीगर अफसरान और मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। सर्वांना नमस्कार, मी विकास मीना, CEO संभाजीनगर। आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आज रोजी बेटी बचाओ बेटी पढाओ कार्यक्रमाचा 10 वर्ष पूर्ण झालेला आहे। या निमित्ताने आपण पूर्ण विभागात आणि इतर लोकांसोबत या ठिकाणी बेटी बचाओ बेटी पढाओची शपथ घेतलेली आहे आणि ही कार्यक्रम जसा आपले सगळ्यांची मदतीने एक यशस्वी रीतीने पार पाडण्यात आलेला होता मागच्या वर्षामध्ये, तसंच रीतीने आपण पुढे पार पाडणार आहे। आपल्याकडे सगळ्यांना माहिती आहे की महिलांसंदर्भात मुलींसंदर्भात खूपच समाजामध्ये इश्यूज आहे, ते आपल्याला नेहमीच आपल्याला डेली जीवनमध्ये ॲड्रेस करावा लागते। प्रशासन यासाठी सशक्त आहे आणि मुलींची जसा आपण वाचला होता ना आता की आपला लिंगानुपात सेक्स रेशिओ आहे ते खूप कमी होत चाललेला आहे। यासोबत त्यांच्या डोमेस्टिक व्हायलन्सचा केस आहे, आपल्या ज्या ठिकाणी जे काम करतात त्या ठिकाणी त्यांच्या हॅरेसमेंटचा विषय आहे किंवा इतर विषय आहे, त्यावर आपण प्रशासन नेहमी दक्ष आहे, त्यावर काम करत आहे आणि आपला समाज जसा महिलांसाठी प्रोग्रेसिव्ह रीतीने काम करत आहे तसंच रीतीने पुढे आपला समाज आणखी महिलांसाठी और समावेशक राहणार आहे। 22 जानेवारी 2015 ला पानिपत येथून बेटी बचाओ बेटी पढाओ मोहिमेला सुरुवात झाली। सदर मोहिमेचा उद्देश हा मुलींच्या जन्माचं प्रमाण वाढवणे आणि लिंग निवडीस प्रतिबंध करणे याच्यावरती ही योजना सुरू झाली। आज 10 वर्ष झाले सदर योजनेला 22 जानेवारी 2025 रोजी। तरीही महाराष्ट्रातल्या काही जिल्ह्यांमध्ये मुलींचं जे प्रमाण आहे ते अत्यंत कमी आहे आणि परत एकदा सदर योजनेच्या संदर्भात जनजागृती होण्याकरता शासनाने पुन्हा एकदा 22 जानेवारी 2025 ते 8 मार्च 2025 याचा कालबद्ध कार्यक्रम आखलेला आहे आणि महिला बाल विकास विभाग
याचे नोडल अधिकारी म्हणून कार्य करतात. तर माझी सर्वांना विनंती आहे इथे उपस्थित की त्यांनी आज जी प्रतिज्ञा घेतलेली आहे ती आपल्या समाजात आपण जिथे काम करतो तिथे याचं मुलींच्या जन्माचं महत्त्व सगळ्यांना पटवून देण्यात यावं. धन्यवाद. लग्नाला बायको पाहिजे, फिरायला गर्लफ्रेंड पाहिजे, जन्माला आई पाहिजे, राखी बांधायला बहीण पाहिजे, मग गर्भातली मुलगीच का नको? हा सगळ्यात मोठा प्रश्न या सगळ्या जनतेला किंवा या सगळ्या लोकांना पडलाच पाहिजे. यासाठी महिला बाल कल्याण विभागामार्फत बेटी बचाओ बेटी पढाओ मोहिमेअंतर्गत सगळ्यांनी प्रतिज्ञा इथे घेतलेली आहे. त्या अनुषंगाने सध्याच्या पूर्ण जगामध्ये महिलांचे आणि मुलींचे महत्त्व वाढत चाललेले आहे. त्यामुळे ह्या सर्व गोष्टींचे साक्षीदार म्हणून आम्ही देखील इथे आमची स्वाक्षरी करून हा कार्यक्रम राबविण्यास आमचा सहभाग नोंदवलेला आहे. धन्यवाद. बिजली सप्लाई कंपनी महावितरण ने शहरी जोन में साल भर में 48,000 ग्राहकों को नए कनेक्शन दिए हैं। कंपनी की जानिब से हर मांगने वाले को कनेक्शन की थ्योरी पर जोर दिया जा रहा है। अयार है कि बिजली फराहमी कंपनी की तजवीज़ सूकर जीवनमान ईज़ ऑफ लिविंग के तहत ग्राहकों को बेहतर खिदमात की फराहमी के साथ साथ नए ग्राहकों को फौरी कनेक्शन दिए जाने के लिए भी कंपनी की हर मुमकिन कोशिश जारी है। इसी के तहत औरंगाबाद जोन में घरेलू, कारोबारी और सनती व ज़रई इस्तेमाल के ज़मरों के तहत साल गुज़िश्ता 48,434 नए कनेक्शन दिए गए हैं। शहरियान के मेयारी ज़िंदगी को ऊंचा उठाने के मकसद से हुकूमत ने ईज़ ऑफ लिविंग की तजवीज़ पर अमल आवरी के तहत बिजली जैसी अहम ज़रूरत की फराहमी और मेयारी व मुस्तकिल बिजली फराहमी को यकीनी बनाने की कोशिश की है। इस सिलसिले में औरंगाबाद परिमंडल की मैनेजिंग डायरेक्टर लोकेश चंद्र के जारी करदा अहकाम और इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक मुकर्ररा मेयाद में नए कनेक्शन जोड़ने, मुस्तकिल सप्लाई समेत ग्राहकों की शिकायत के बरवक्त इजाले पर जोर दिया जा रहा है। इस तरह की इत्तला बिजली कंपनी के ज़राए ने दी है। डिविजनल कमिश्नर ने 100 रोज़ा कारगुजारी टारगेट का जायज़ा लिया और मुताल्लिक़ा दफातर को 100 रोज़ा कारकर्दगी टारगेट के मुताबिक काम अंजाम देने की हिदायत देने के लिए एक अहम मीटिंग मुनक़िद की। अयार है कि रियासती हुकूमत ने तमाम इंतजामी उमूर के दफातर और शोबेजात को 100 रोज़ा कारगुजारी के टारगेट व खाके दे दिए हैं। इसी के तर्ज पर इलाकाई सरकारी और नीम सरकारी दफातर के लिए 100 दिनों में सूकर, जीवनमान, सफाई, अवामी शिकायत के हल, दफातर में दी जाने वाली सहूलियात व इंतजामात, सरमायाकारी के फ़रोग़ और इलाकाई दफातर की विजिट जैसे मौज़ूआत पर मौसर अमल आवरी के लिए सरकार पहले ही हिदायत जारी कर चुकी है। तमाम इलाकाई सरकारी नीम सरकारी दफातर इस टारगेट व खाके के मुताबिक कार्रवाई अंजाम दें। इस तरह के अहकाम डिविजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े ने जारी किए हैं। इस 100 रोज़ा कारगुजारी टारगेट को लेकर तमाम शोबाजात की एक जायज़ा मीटिंग डिविजनल कमिश्नर ने मुनक़िद की। इस इजलास में एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर अरविंद लोखंडे, एडिशनल कमिश्नर महसूल नैना बोंदारडे, रोज़गार ज़मानती स्कीम के डिप्टी कमिश्नर अनंत गौहाने, शोबे तरक्यात की डिप्टी कमिश्नर सीमा जगताप और दीगर अहम अफसरान मौजूद थे, जबकि ज़िला परिषद CEO ने VC के ज़रिए इस मीटिंग में शिरकत की। बीवी के किरदार से शाकी शौहर ने उसका गला दबाकर कत्ल कर दिया था। अदालत ने शौहर को बीवी के कत्ल का मुजरिम करार दिया और उम्र कैद के साथ साथ 3,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। शौहर के जरिए बीवी को कत्ल कर देने की यह वारदात 20 जून 2019 को पेश आई थी। मुलजिम 25 साला आनंद सुरेश लोखंडे साकिन पवन नगर रांजन गांव शीन पूंजी ताल्लुका गंगापुर ने बजाते खुद पुलिस थाना आकर मालूमात दी थी कि उसकी बीवी ममता वालिदो वालदा व बच्चे समेत उनके मुकुंदवाड़ी में रहने के दौरान उसकी बीवी के किसी दूसरे से नाजायज ताल्लुकात होने के सबब और उसके बार बार समझाने और बहके कदम रोक लेने की हिदायत के बावजूद जब वो न मानी तो उसने गला दाब कर अपनी बीवी ममता को कत्ल कर दिया है। मुलजिम के खुद आकर इकबाल जुर्म के बाद मुताल्लिका पुलिस थाने में उस वक्त बरसरकार PSI विट्ठल चास्कर ने इस मामले की मजीद तहकीकात की थी और मुलजिम के खिलाफ सबूत और शवाहिद जमा करके उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मुलजिम की तिबी जांच की रिपोर्ट भी दाखिल अदालत की गई और सबूत और गवाहों के बयान कलमबंद करवाए गए और आखिरकार जिला सेशन अदालत वेजापुर ने उसे कत्ल का मुजरिम करार देकर उम्र कैद और 3,000 रुपये जुर्माने की सज़ा तजवीज़ की है। रियासती सेकेंडरी व हायर सेकेंडरी बोर्ड ने एक अहम फैसला किया है जिसके तहत अब जिन स्कूलों कॉलेजों में एग्ज़ाम सेंटर होंगे वहां उसी स्कूल और कॉलेज के स्टाफ को ड्यूटी नहीं दी जाएगी।
बोर्ड ने अपने इस फैसले को नाफिजुल अमल भी कर दिया है। इस फैसले के तहत अहकाम दिए गए हैं कि जिन स्कूल कॉलेजों में एग्ज़ाम सेंटर होंगे वहां उन्हीं स्कूलों के सेंटर चीफ, गार्डिंग करने वाले असातिज़ा और दीगर मुलाजिमीन को एग्जामिनेशन ड्यूटी नहीं दी जाएगी, बल्कि वहां दूसरे स्कूल कॉलेज के स्टाफ मुकर्रर किए जाएंगे। रियासती मज़कूरा बोर्ड के सदर शरद गोसावी ने डिवीज़नल बोर्डों समेत एजुकेशन डिप्टी डायरेक्टर को 10वीं 12वीं के इम्तिहानात में इस जानिब तवज्जो देने की हिदायत दी हैं और बाज़ाब्ता इस तरह के अहकाम जारी कर दिए हैं। वाज़ेह हो कि इस साल 10वीं के इम्तिहानात 11 फरवरी और 12वीं के एग्ज़ाम 21 फरवरी से शुरू होंगे और इन इम्तिहानात को नकल फ्री बनाने की मुहिम चलाने के अहकाम भी दिए गए हैं। इस मुहिम से मुताल्लिक़ मकामी अवामी नुमाइंदे, तलबा के सरपरस्त, खुद तलबा व असातिज़ा और शहरियान को मुहिम की जानकारी देने, तलबा को नकल नवेसी से बाज रहने, हल्फ दिलवाने और नकल करने से होने वाले नुकसानात से आगाह करने, इम्तिहानात के दौरान में तलबा की हिफ्ज़ान सेहत पर नज़र रखने, इम्तिहानात की तैयारी से मुताल्लिक़ फ़िल्म तलबा को दिखाने, अवामी बेदारी रैली निकालने जैसे उमूर की हिदायत भी एजुकेशन डिप्टी डायरेक्टर व एजुकेशन ऑफिसर को दी गई हैं। शहर के मारूफ ताजिर बीएम टेलर्स एंड ग्रुप ने ताल्लुका गंगापुर के मौजा देवलई में बीएम सिटी के नाम से नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसकी बुकिंग शुरू कर दी गई है। ये इत्तला डायरेक्टर हिफ्जुर रहमान ने एमसीएन को दी है। उन्होंने एमसीएन को बताया कि ये प्रोजेक्ट 16 एकड़ ज़मीन पर बनाया गया है। औरंगाबाद ज़िला के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से मंजूर शुदा लेआउट पर 800 स्क्वायर फीट, 900 स्क्वायर फीट, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000 और 4000 स्क्वायर फीट के प्लॉट दस्तयाब हैं। प्लॉटिंग के दरमियान 30 फीट, 40 फीट और 50 फीट के कुशादा रास्ते तामीर किए गए हैं। ये प्रोजेक्ट मुंबई नासिक हाईवे रोड टच, पूना धुलिया हाईवे NH52 से 1 मिनट के वक्फे में पहुंचा जा सकता है। पोटुल रेलवे स्टेशन और समृद्धि हाईवे मालीवाड़ा इंटरचेंज से सिर्फ 5 मिनट की मसाफत के बाद बीएम सिटी तक पहुंचा जा सकता है, जबकि बाबा पेट्रोल पंप से बीएम सिटी के दाखिली दरवाजे तक स्मार्ट सिटी बस सर्विस भी दस्तयाब है। प्रोजेक्ट की ज़मीन पर 1 फुट पर मुरुम मौजूद है। ड्रेनेज लाइन, सीमेंट कंक्रीट रोड, पीने के पानी के लिए पाइपलाइन और स्ट्रीट लाइन का इंतजाम किया गया है। यहाँ अहाते में 500 से ज़्यादा दरख्त लगाए गए हैं। यहाँ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और मॉल के लिए एम्यूनिटी प्लॉट्स भी दस्तयाब हैं। 3 ओपन स्पेसेस रखे गए हैं। बीएम सिटी के लिए न सिर्फ हिफाजती दीवार तामीर की गई है, बल्कि खुफिया कैमरे भी यहाँ नस्ब किए गए और तहफ़्फ़ुज़ का भरपूर इंतज़ाम किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए सिटी चौक में वाक़ई बीएम टेलर्स पर राब्ता कायम किया जा सकता है। बीच वाले पोर्शन के अंदर वो शॉप्स रहेंगे, अंदर ये रोड से आने के बाद ये एम्यूनिटी प्लॉट और फिर इसके अंदर बड़े प्लॉट। हमारी प्लॉटिंग शुरू की गई थी तो हम लोग जो है टेलरिंग काम करते थे। हमारे साथ हमारे भाई शेख शफीक साहब आज मौजूद है। इन्होंने हमारे को ये कहा कि भाई आपके पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं तो आप प्लॉटिंग का कारोबार क्यों नहीं करते, क्योंकि मैं प्लॉटिंग का कारोबार करता हूँ, इसलिए ये आपको मशवरा दूंगा कि आप भी इस फील्ड में आ जाए। तो हमने इनसे कहा भाई इतने पैसे हमारे पास तो है नहीं और मैं कहाँ से प्लॉटिंग का कारोबार करूँ। तो इन्होंने बोले कोई बात नहीं, जितने पैसे तुम्हारे पास में बस मेरे को दे दो, क्या है मैं गिनता नहीं। और इन्होंने अपने लिए जो एक प्लॉटिंग के लिए ज़मीन रखे थे उस ज़मीन को मेरे हवाले कर दी। वो सिर्फ 1 एकड़ ज़मीन थी और जो जिस दिल के साथ, जिस ख्वाहिश के साथ में, जिस उम्मीदों के साथ में उन्होंने उस ज़मीन को हमारे को दिए थे और जिस दुआओं के साथ दिए थे, अल्लाह ने उसको कबूल किया। वो 1 एकड़ ज़मीन के अंदर हमने जो है सिर्फ 40 प्लॉट कुछ डाले थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो 40 प्लॉट की जो बरकतें थी, एक के बाद एक प्लॉटिंग शुरू होते रही। लेकिन उसके बाद 1 एकड़ ज़मीन से अब हमारे पास कुछ पैसे जमा हुए थे और उसके बाद में हमने जब फिर कोई बड़ी ज़मीन लेने का इरादा किया तो आज इत्तेफाक से इस हमारे खुशी के मौके पर जिन्होंने हमारी पहली शुरुआत किए थे, अपने ख़ुद के लिए जो ज़मीन रखे थे वो हमको दे दिए। और उसके बाद हमने जब बड़ी ज़मीन ख़रीदे जो पहले 4 एकड़ ली गई, 15-20 दिन के बाद में और 6 एकड़ ली गई, ऐसे 10 एकड़ ज़मीन हुई। उसके लिए भी जिन्होंने हमको सपोर्ट किए थे वो है हमारे परसराम भाऊ और ये है उनकी माता जी। इन्होंने भी बोले आपके पास जो पैसे हैं उतने दे दो और बस हमारी ज़मीन आपको ही हमको देना है। और पूरी दुआओं के साथ में उन्होंने ये उस ज़मीन को हमको दिए।
वो ज़मीन से हमको इनके जो देने वाले पैसे थे पूरे जमा हुए, और जब हमने इनकी रजिस्ट्री कर लिए, इनका भरोसा हमारे ऊपर इतना था कि वो पूरे पैसे हमारे पास ही उन्होंने रहने दिए, और उसके बाद में कई सालों के बाद हमको इनको बोलना पड़ा भाई आप अपनी अमानत आपके पास रख लो। तो इस तरह से दो मददगार मेरे आजू बाजू खड़े हुए हैं, और आज एक पहली मेरी प्लॉटिंग हुई थी और आज सिल्वर जुबली हम लोग मना रहे हैं। आज 25वीं कॉलोनी ये है, और इन लोगों की सपोर्ट से आज अल्लाह ने हमको यहाँ तक पहुँचा दिया। इसमें हमारे शेख शफीक साहब का बहुत बड़ा रोल है। जो इन्होंने BMCT के नाम से जो प्रोजेक्ट बनाए, यहाँ तकरीबन 1000 से ऊपर फ्लैटिंग है, और 2000 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट आप अपनी सहूलत के हिसाब से आप खरीद सकते हैं। मुझे भी 2 फ्लैट पसंद आए, मैं भी 46 और 47 बुक करा लिया हूँ, और इंशाल्लाह 2-1 दिन में पेमेंट हो जाएगा। ऐसा यहाँ भरोसे की चीज़ है बोल के हम आए, अगर भरोसे की चीज़ नहीं होती तो हम भी नहीं आते थे। और इससे बहुत जगह सिटी में भी है, लेकिन भरोसा है उस बात पे हम आए हुए हैं यहाँ। कैम्ब्रिज स्कूल से करीब मौजूद सोहम पार्क और शिव पार्क बस्तियों को जाने वाले रास्ते पर लोग गंदगी फेंक रहे हैं, जिसके सबब वहां आवारा कुत्तों ने डेरा जमा रखा है और इलाके के साकिनान को परेशानियों का सामना है। ये शिकायत यहां के मकामी साकिनान ने की है। उनका कहना है कि चिकलथाना इलाके में कैम्ब्रिज स्कूल से करीब गट नंबर 370 पर सोहम पार्क और शिव पार्क के नाम से बस्तियां आबाद हैं, मगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से उन्हें अब तक कोई बुनियादी सहूलत फराहम नहीं करवाई गई है। हद तो ये है कि वहां घंटा गाड़ियां भी नहीं आती। उसके बावजूद हिफ्ज़ान सेहत के पेश नज़र उन लोगों ने दोनों ही बस्तियों की सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी है, मगर इन बस्तियों को जाने वाली सड़क पर कुछ लोग मुर्गियों के पैर, बकरों की गंदगी और दीगर गिलाजत लाकर फेंक रहे हैं, जिससे वहां आवारा कुत्तों की बहुतात हो गई है, जो बस्ती के बच्चों को अपना निशाना बनाने लगे हैं और उनका घूमना फिरना, घरों के बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। उन लोगों का म्यूनिसिपल इंतजामिया से मुतालबा है कि यहाँ बुनियादी सहूलतें फौरी फराहम करवाई जाएं। इसी तरह रास्ते पर फेंकी जाने वाली गंदगी उठवाने का खुसूसी इंतजाम करवाया जाए और इलाके में पीने के पानी की फराहमी का इंतजाम करवाया जाए। ये घान डालते मुर्गी, तो ये 4-5 महीने से डाल रही, बात सारी सब गंदी बात सारी, इधर उधर चलने को फिरने को, ये बच्चे खेलते, ये सब खेती है नजदीक, ये 4-5 महीने से हो रही है मस्जिद के सामने। अब सरकार से क्या अपेक्षा, ये घान नहीं डालना है करके। और इधर ये ज्यादा डालने से क्या हो रहा है कि कुत्ते लोग आ रहे हैं, इधर ही खाना खा रहे हैं, इधर ही आसपास घूम रहे हैं, इधर जो बच्चे आते हैं उनको वो काट रहे हैं। रैबिज का पूरा इधर जो रैबिज फैला हो रहा है। जो भी महानगर पालिका की कचरा पट्टी की जो गाड़ी है, कुछ गाड़ी ऐसी ट्रैक्टर आ रहे हैं, इधर ही कचरा डालकर भाग जा रहे हैं। ये कचरा जो नाले का कचरा है, सिटी में से उठा कर ला रहे, या बांधकाम वाले कचरा है, ये उठा के इधर डाल रहे। ये सब रोड पे डाल रहे। कुमड़ी के ये पैर है, उसके जो भी चिकन का जो भी गंदगी निकल रहा है, ये सब रोड पे आके इधर डाल रहे लोग। और पूरे ये क्या होता है, डालने से कुत्ते इधर ही खेलते हैं, इधर ही खाते हैं और इधर ही सो जाते हैं। कोई भी इधर उधर आदमी जो गुजरता है तो उधर उसको काट लेता है। हमारी डिमांड है कि हमारे को डेली में 1 दिन आड़ हो या 1 दिन ये तो घंटा गाड़ी आना चाहिए, और जो कचरा है इसका विल्हेवाट ये तुरंत लगाना चाहिए। और जो कोई आ रहा है अनबिन व्यक्ति है, मान लो समझो वो जो डाल रहा है यहाँ पे, तो उस पे कार्रवाई हो या ना हो, लेकिन उगड़े पे डाल रहा है तो कार्रवाई होना चाहिए, मेरा को लगता है। नाही महानगरपालिकेचं जे विचारपूसही करत नाही, येतही नाही, जे पाणी सप्लाय आजचं टँकर वगैरे आम्हाला महानगरपालिकेचा कुठलाही त्यांचा बेनिफिट नाहीये। टॅक्स लावलेला आहे, आमच्यातले बरेचसे लोकांनी भरलेला आहे, भरतोही आहे। इकरा उर्दू प्राइमरी स्कूल में आज तालीमी नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह स्कूल के सदर मुदर्रिस नौशाद खान के हाथों अमल में आया। नाज़रीन, तलबा में तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के मकसद से ये नुमाइश रखी गई, जिसमें तलबा के हाथों तैयार करदा साइंस, जोग्राफिया और रियाजी मज़ामीन के मॉडल्स रखे गए, जिन्हें हाज़रीन ने खूब पसंद किया। ये नुमाइश स्कूल टीचर शाइस्ता अंजुम और ज़ियाउल हुदा की रहनुमाई में रखी गई, जिसमें स्कूल के तमाम असातिज़ा, तलबा और उनके सरपरस्तों ने भरपूर ताउन दिया। मुफ्ती मोहम्मद मोहियुद्दीन की रहनुमाई में बैनुल मदारिस इस्लामियात क्विज़ का भी एहतमाम किया जा रहा है। इस क्विज़ में हिस्सा लेने वाले तलबा इस्लामियात क्विज़ के उन्वान से एक किताबचा शाये किया गया, जिसकी रौनुमाई सदर मुदर्रिस नौशाद खान और अल हिरा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के नायब सदर गुलाम रहमानी और दीगर जिम्मेदारान के हाथों की गई।
करने के वास्ते कभी पक्का हवा की मदद से घूम जाए तो मोटर के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पैदा होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा उर्दू प्राइमरी स्कूल कटकट गेट औरंगाबाद की जानिब से तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए और मख्फी जो सलाहियतें बच्चों के अंदर छुपी हुई है तो उसको उजागर करने के लिए आज तालीमी नुमाइश का इनेकाद किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस नुमाइश के तहत साइंस के वर्किंग मॉडल, कुछ मॉक मॉडल और इसी तरह से जोग्राफिया के मॉडल, जो एक मज़मून रियाजी से अक्सर खुश्क कहा जाता है, उसके भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ वर्किंग मॉडल्स यहाँ पर टीचर्स की रहनुमाई में तलबा ने तैयार किया अल्हम्दुलिल्लाह और उसको यहाँ पे पेश किया गया। तालीमी नुमाइश का मकसद सिर्फ इतना ही है कि बच्चों को खुलकर इस बात का मौका दिया जाए कि वो कुछ सोचे, गौर करे और कुछ उनके जहन में कुछ चीज़ें चल रही है तो सवालात क्रिएट हो, उसके जवाबात क्या हो सकते हैं, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, उस पर गौर करे। और टीचरों के ज़रिए से या मुख्तलिफ जो आजकल समझ लीजिए कि वसाइल मार्केट में अवेलेबल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चैट जीपीटी है और भी जो अच्छी चीज़ें हो सकती है, वो नए वसाइलों का सही इस्तेमाल करते हुए अपनी चीज़ों को यहाँ पेश करें और दूसरे बच्चों को भी इसके ज़रिए तरग़ीब मिले और हमारे स्कूल का भी नाम रोशन करे, शहर का भी नाम रोशन करे, हमारे मुल्क का नाम भी रोशन करे और इस मुल्क के बेहतरीन वो शहरी साबित हो, एक बेहतरीन इंसान साबित हो, वो दूसरों के लिए फ़ायदा मंद और नफ़ा बख्श बन जाए। यही समझ लीजिए कि उसका लब्बे लुबाब आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम, मैं इक़रा उर्दू स्कूल की सीनियर मौलिमा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल में आज 2 प्रोग्राम्स रखे गए हैं। एक इक़रा उर्दू प्राइमरी स्कूल की जानिब से क्विज़ मुकाबला जो है उसका इनेकाद करने जा रहा है, बैनुल मदारिस सतह पर करने जा रहा है। उसकी किताब का इजरा का आज प्रोग्राम रखा गया है। उसके साथ साथ तालीमी नुमाइश जिसमें साइंस, जोग्राफिया और रियाजी के साथ साथ दीगर मॉडल्स भी तैयार किए गए हैं। कुछ मॉडल्स वर्किंग है और कुछ तालिबात बता रही हैं। ये हमारा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से शहर औरंगाबाद में तलबा की हमजहत तरक्की के लिए कोशा हैं और मोहतरम अशफाक अहमद साहब बानी सदर की निगरानी में हमारा इदारा चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सोसाइटी और एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी का मकसद अव्वल ओर से शुरू ये रहा है कि हर तालिब इल्म को अल्लाह का नेक साले बंदा बनाना और इंसानियत का सच्चा बही ख्वाह बनाना। उसी के पेश नज़र हमारे स्कूल में दीनी और असली सरगर्मियाँ का इनेकाद किया जाता है। हमारे स्कूल के सदर मुदर्रिस नौशाद खान साहब जब से आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कूल ने दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की की है और तमामी सरगर्मियाँ दीनी हो या असली हो, तमामी मुकाबलेजात बैनुल मदारिस मुकाबलों में तलबा की शिरकत हर स्कूल की सरगर्मियों में, चाहे गवर्नमेंट की जानिब से हो या सोसाइटी की जानिब से हो, तमामी सरगर्मियों में हमारा स्कूल हिस्सा लेता है और अल्हम्दुलिल्लाह इनाम अव्वल, इनाम दुबम, इनाम सुबम हासिल करते हैं। साइंस नुमाइश के मौके पर रियाजी के भी कुछ मॉडल्स तैयार किए गए, जिसमें ख़ास तौर पर AI के कुछ मॉडल्स बनाए गए, जिसमें बच्चों ने AI के ज़रिए वीडियोस और फ़ोटोज़ कैसे बनाते हैं दिखाया और साथ ही साथ रियाजी से आम ज़िंदगी में रियाजी को जोड़ने के लिए कुछ अच्छे से मॉडल्स और कुछ चार्ट्स बताए गए। मुकुंदवाड़ी के म्यूनसिपल स्कूल की सालाना तकरीब मुनक़्क़िद हुई। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की खुसूसी शिरकत और रहनुमाई रही। इस मौके पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने तलबा व असातिज़ा से अपने खिताब में कहा कि इस तरह के स्कूली सतह के सालाना गैदरिंग प्रोग्राम तलबा की पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने और उनकी अहलियत के फ़रोग़ में निहायत कारगर साबित होते हैं। मुकुंदवाड़ी के म्यूनसिपल स्कूल का ये सालाना प्रोग्राम निहायत जोश व खरोश के साथ शानदार तरीक़े से मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर मुनक़्क़िदा तक़रीब में तलबा ने हुब्बुल वतनी के तराने और लोक गीत पेश करके हाज़रीन से खूब सताइश व दाद तहसीन हासिल की। इस मौके पर तलबा, असातिज़ा और तलबा के सरपरस्त बड़ी तादाद में शरीक हुए, जबकि स्कूल के असातिज़ा, तलबा व गैर तदरीसी अमले ने प्रोग्राम की कामयाबी के लिए भरपूर ताउन किया। वालूज MIDC इलाके में AS क्लब ट्रैफिक पुलिस चौकी से करीब दिन दहाड़े चाकू से खौफजदा करके लूट मार की वारदात पेश आई, जिसके सबब इस सड़क व इलाके में खौफ व दहशत फैल गई है।
लूटमार के इस वाक़े में लुटेरे एक मोटरसाइकिल सवार नीलेश पंढरीनाथ रोकड़े को चाकू की नोक पर खौफजदा करके उसकी गाड़ी और मोबाइल छीन कर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक नीलेश 20 जनवरी की सपहर 3 बजे के करीब एएस क्लब चौक से करीब गाड़ी रोककर रोड से बाजू ज़रूरत से फारिग होने के लिए रुका था। उसी असना 2 अफराद मोटरसाइकिल पर वहां आए और नीलेश की पुश्त पर चाकू लगा दिया और उसकी मोटरसाइकिल और जेब में रखा मोबाइल फ़ोन उचक कर फरार हो गए। नीलेश ने दी मालूमात के मुताबिक लुटेरों के नाम योगेश और अमोल होने की बात भी सामने आई है। वालूज MIDC पुलिस थाने में केस दर्ज कर लिया गया है और मज़ीद तहकीकात पुलिस कर रही है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने जराइम की 5 वारदात का मसरूक़ा कमोबेश 16,69,769 रुपये मालियत का सामान बरामद किया है, जबकि चोरी व नक़ब ज़नी के सरगना मुलजिम को गिरफ्तार किया है। इस सिलसिले में पुलिस से मिली मालूमात के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ पुलिस थाना हदूद में सरक़े व नक़बज़नी के मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम निसार अहमद उर्फ सलमान दुल्हन गफ्फार पठान साकिन संजय नगर बतलाया गया है। पुलिस ने अपनी गहरी छानबीन और जांच के जरिए उसे गिरफ्तार किया और मसरूक़ा 16,69,769 रुपये मालियत का सामान भी बरामद कर लिया गया। इस तरह की मालूमात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करके DCP प्रशांत स्वामी ने दी है। जवाहरनगर पोलीस स्टेशनचा घरफोडीचा एक गुन्हा दाखल झाला होता, त्याचा तपास गुन्हे शाखा करत होती। त्या गुन्ह्याचा तपास करत असताना गुन्हे शाखेला आमच्या गोपनीय बातमी अशी मिळाली की आरोपी निसार अहमद उर्फ सलमान दुल्हन गफ्फार पठाण वय 26 वर्ष राहणार संजय नगर छत्रपती संभाजीनगर या आरोपीनं सदर घरफोडी केलेली आहे आणि त्यामुळे आम्ही त्या आरोपीला ताब्यात घेतलं। त्याच्याकडे चौकशी केली असता जवाहरनगर पोलीस स्टेशनच्या गुन्ह्यासोबतच त्यांना आणखीन इतर 4 पोलीस स्टेशनला दाखल असणाऱ्या गुन्ह्यामध्ये त्याचा सहभाग असल्याचं निष्पन्न झालेलं आहे। सदर गुन्ह्यामध्ये आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे आणि आरोपीकडून आतापर्यंत एकूण 16,69,769 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे। त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची वेगवेगळ्या कंपनींची मोबाईल्स आहेत, स्मार्ट वॉच आहेत, घड्याळ आहेत, परफ्यूम्स आहेत। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। 26 जनवरी यौम जमहूरिया के मौके पर राब्ता वजीर संजय शिरसाट के हाथों पुलिस कमिश्नरेट के देवगिरी मैदान पर लहराया जाएगा कौमी परचम। परचम कुशाई तकरीब के लिए की गई तैयारियों का डिवीजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े ने लिया जायजा और मुताल्लिका अफसरान को दी ज़रूरी हिदायत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के 10 साल मुकम्मल। जिला परिषद दफ्तर में CEO की मौजूदगी में हाजिरीन को दिलाया गया अहद। लड़कियों की शरह पैदाइश में इजाफे के लिए ठोस कदम उठाने का CEO ने दिया हाजिरीन को मशवरा और शुरू की गई दस्तखती मुहिम। सेकेंडरी व हायर सेकेंडरी बोर्ड इम्तिहानात के लिए बोर्ड इंतजामिया ने लिया अहम फैसला। एग्जाम सेंटर्स पर तलबा के साथ अब नहीं होंगे उनके स्कूलों के असातिज़ा व दीगर स्टाफ मेंबरान। सेंटर चीफ सुपरवाइजर इन्विजिलेटर्स होंगे गैर मुताल्लिका शख्सियात। और तालीमी इदारों में सालाना गैदरिंग और तालीमी नुमाइश के इनेकाद का सिलसिला जारी। इकरा उर्दू प्राइमरी स्कूल में तालीमी नुमाइश का एहतमाम, जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुकुंदवाड़ी स्कूल में मुनक़िद की गई सालाना गैदरिंग। स्कूली तलबा ने लिया हर 2 तकरीबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा और मनवाया अपनी जहानत का लोहा। इसी के साथ MCN उर्दू खबरें ख़त्म होती हैं। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।